हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन की फर्स्ट यूनिट सेट्स की एक्सरसाइज 1D सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। सो आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 22 लाइक हिस्ट्री, 25 लाइक ज्योग्राफी एंड 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट। Draw a Venn diagram and find the number of students who do not like history, who do not like geography and like neither history nor geography। तो सबसे पहले हम यहाँ सेट्स बना लेते हैं। Let capital H be the all students who like history। ओके, ज्योग्राफी के लिए कैपिटल G ले लेते हैं। All students who like geography and we know the number of students, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cardinal number of H is 22, that is for history, and cardinal number for G is given 25. So this is given your cardinal number, और पूरी क्लास 50 students की है। So cardinal number of the universal set will be 50 students, and we know that there are 10 students who like both the subjects। So हम ये लिख सकते हैं दोनों like करते हैं, मतलब A मतलब H इंटरसेक्शन G, दोनों ही सब्जेक्ट जो like करते हैं, that is 10। So यहाँ पर आपको ये निकालना है who do not like history। So do not में मतलब ये जो स्टूडेंट्स होगा उनका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। So first part is students who do not like history। So for that we'll find cardinal number for H complement। So cardinal number for H complement हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है cardinal number of the universal set minus the cardinal number of who like history। So we know 50 students are complete in the class and there are 22 students who like history। So उनके अलावा जो होंगे that is 28 students who will not like history। Second, do not like geography। So students who don't like geography, that is cardinal number for G complement। So n from the universal set and n from geography will give 50 minus 25, that is equal to 25। So ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जो कि ज्योग्राफी लाइक नहीं करते। अब दोनों ही लाइक नहीं करते हैं वो निकालना है आपको, that is students neither like history nor geography। So for that we'll find n H union G का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो इन दोनों को ही लाइक करते होंगे that is the universal set, और इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो जो दोनों को ही लाइक नहीं करते होंगे वो आ जाएंगे। So n of the universal set minus n of H union G। So n of n H union G कैसे निकालेंगे हम? That is n of H union G is equal to NH plus NG minus NH intersection G। ये मैं इसके प्रीवियस वीडियो में ये फॉर्मूला समझा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन दी प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने ये सॉल्व करवाया है। सो वी हैव 22 स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड 25 फ्रॉम ज्योग्राफी एंड माइनस द इंटरसेक्शन दैट इज 10।
So this is total 47 minus 10 will give 37. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 minus 37 that is 13. So ये हमारा इसका solution है. Question number 8. 2000 candidates appear in a written test in mathematics and general awareness for a government job. 1800 passed in it at least one subject. If 1200 passed in mathematics and 1500 in general awareness, find how many passed in both the subject, how many passed in mathematics only, and how many failed in general awareness. तो सबसे पहले हम यहाँ सेट्स बना लेते हैं. तो हम एज्यूम कर लेते हैं M is for who passed in mathematics and G हम मान लेते हैं who passed in general awareness. ओके, सो ये हमारे पास दो सेट्स हमने फॉर्म कर लिए हैं. अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in maths are given 1200 and in general awareness there are 1500 students and हमें ये पता है कि टोटल एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं लेकिन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं दैट इज 1800. So that means we are being given cardinal number for G union M. So it is 1800. So आपको first find करना है how many passed in both the subject. Both the subjects का मतलब है we need to find N M intersection G. तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा N M plus N G minus N G union M. So we have 1200 plus 1500 minus 1800 that is equal to, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 2700 minus 1800 that is equal to 900. Next we need to find how many passed in math only. math अकेला जो सब्जेक्ट है जिसमें वो पास हुआ है, that means N M intersection जनरल अवेयरनेस का हम काउंट नहीं करेंगे. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू काउंट इट एज N M minus N M intersection G. So this is going to be 1200 minus 900 that is equal to 300. And how many failed in general awareness? So for that we need to find the complement, मतलब N G complement find करना है. So for this we need cardinal number for universal set minus N for general awareness. So cardinal number मतलब total जितने भी students हमने यूनिवर्सल सेट में लिए हैं दैट इज 2000 माइनस द जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस वी हैव 1500. सो टोटल वी हैव 500 students who failed in general awareness. Question number 9. In a group of 80 people, 40 like Indian food, 36 like Chinese food and 27 do not like any kind of these food. Draw Venn diagram to find how many like both kinds of food, second how many like only the Indian food and third how many like only the Chinese food. So हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि I जो है वो like करते हैं Indian food और हम C ले लेते हैं जो लाइक करते हैं चाइनीज फूड. ओके, सो हियर वी हैव द यूनिवर्सल cardinal number as 80 and cardinal number for Indian food as 40, cardinal number for Chinese food as 36 and do not like मतलब हमारे पास ये जो है that is N I complement intersection C complement. So this is equal to N I
डी मॉर्गन्स थ्योरम से लिख सकते हैं इन दोनों का यूनियन का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज गिवन एज 27. तो अब हमको फाइंड करना है लाइक बोथ द फूड्स. सो उसके लिए हम फाइंड करेंगे एन आई यूनियन सी. इंडियन और चाइनीज दोनों ही लाइक करते हैं. इन दैट केस एन फॉर द यूनिवर्सल सेट माइनस एन आई यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. सो दिस इज गिवन 80 और ये है हमारे पास 27. सो वील गेट द आंसर एज 53. नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइक बोथ इंडियन फूड. ओनली द इंडियन फूड. तो इंडियन फूड सिर्फ लाइक कर रहे हैं, नॉट द चाइनीज फूड. सो इन दिस केस वील टेक n फॉर i माइनस n i इंटरसेक्शन c. सो n i है हमारे पास 40 एंड i इंटरसेक्शन c फाइंड करने के लिए हमारे पास i यूनियन c है. सो i इंटरसेक्शन c का कार्डिनल नंबर फाइंड करने के लिए n i प्लस n c माइनस n i यूनियन c. So this is equal to 40 plus 36 minus 53. So this is going to be 76 minus 53, that is equal to 23. So 23 इसमें से हम माइनस कर देंगे, we'll get 17 as the answer. So how many like only the Chinese food? सिर्फ चाइनीज फूड जिसको पसंद है, मतलब इंडियन कॉम्प्लीमेंट विथ इंटरसेक्शन सी. सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कार्डिनल नंबर फॉर सी माइनस एन आई इंटरसेक्शन सी. सो कार्डिनल नंबर फॉर चाइनीज इज 36 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 13. सो हेंस दिस इज द आंसर. अभी हमें इसका वेन डायग्राम भी बनाना है. सो वेन डायग्राम के लिए हम पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. सो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में है हमारे पास 80 मेंबर्स और एक सर्कल है इंडियन के लिए और एक सर्कल है चाइनीज के लिए. दिस इज फॉर इंडियन एंड दिस इज फॉर चाइनीज. सो इंडियन में और चाइनीज को टोटल हम जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, दिस इज 23. सो दिस इज गोइंग टू बी 23 और टोटल 40 है. सो 23 40 में से हम माइनस कर देंगे. सो वील गेट द इंडियन एज 17. और जब हमारे पास 23 दोनों का है और चाइनीज के लिए 36 है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, वील गेट हियर 13. और बाकी जो लाइक नहीं करते हैं, दीज आर 27 members. Hence, this is going to be its Venn diagram. In a group of people, 2/7 speak Bengali only and 3/7 speak Hindi only. If 20 people speak none of these languages and 80 speak both, find using Venn diagram the total number of people in the group. तो अगर हम इसका Venn diagram बनाते हैं तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 2 सेट्स बनेंगे. एक जो कि बंगाली बोलते हैं और एक जो कि हिंदी बोलते हैं. सो यहाँ पर 2/7 जो है दैट स्पीक बंगाली एंड 3/7 स्पीक हिंदी. सो यहाँ पर अगर हम टोटल स्ट्रेंथ x ले लेते हैं, सो ये दोनों ही 2/7 ऑफ x एंड 3/7 ऑफ x हो जाएगा. एंड वी हैव 80 स्पीकिंग बोथ, मतलब 80 जो है वो दोनों ही लैंग्वेज बोल पाते हैं एंड 20 स्पीक नन, दैट इज आउट ऑफ द सेट्स. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं लेट द टोटल number of people in group be x. So therefore cardinal number for universal set हम ले लेंगे
x, टोटल मेंबर्स हमने यहाँ x एज्यूम करे हैं, और हम b ले लेते हैं हु स्पीक बंगाली, और h ले लेते हैं हु स्पीक हिंदी. सो फॉर दिस अगर हम कार्डिनल नंबर फॉर b इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इट इज 2/7x. अगर हम कार्डिनल नंबर फॉर b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन h लेते हैं, then it is going to be 3/7x. Okay, so now for those who speak none, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस स्पीक नहीं करते हैं, that is 20. So for this, number of people who speak none of these, those are 20, and speak both are 80. सो वेन डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वेन डायग्राम से हम ये कर सकते हैं दैट 2/7 of x and 3/7 of x plus 80 plus 20 is equal to x. These are the total number. So in all, when we solve this, we'll get this as 5x/70, and this is going to be 100 is equal to x. So 100 is equal to x minus 5x/7, which is equal to 2x/7, which is equal to 100, और 7 को इस साइड ले जाएंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इन ऑल x की वैल्यू जो आएगी दैट इज 350. तो आपको यही बताना था टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दी ग्रुप. सो देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल इन group are 350. Hence, this is the answer. Question number 11. In a class of 150 students, the following result were obtained in certain examination. 45 students failed in math, 50 students failed in physics, and 48 students failed in chemistry. 30 students failed in both math and physics, 32 students failed in physics and chemistry, and 35 failed in both math and chemistry, and 25 failed in all the three exams. Draw a Venn diagram corresponding to this data and find the number of students who have failed in at least one subject. तो अगर हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं all students in क्लास, m को मान लेते हैं who failed in maths, p को मान लेते हैं who failed in physics, और c को मान लेते हैं स्टूडेंट who failed in chemistry. सो इन ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट 150 स्टूडेंट्स गिवन हैं. कार्डिनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन 45, कार्डिनल नंबर ऑफ फिजिक्स इज गिवन 50, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ केमिस्ट्री इज 48. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है. अब हमें दोनों का ही सेट गिवन है जहां पर मैथ और फिजिक्स में जो फेल हैं दैट इज 30, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो फेल हैं दैट इज 32, एंड जो कि मैथ एंड केमिस्ट्री में जो फेल हैं दैट इज 35, एंड इन ऑल लास्ट जो कि मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में फेल हैं दैट इज 25. अगर हम यहाँ फाइंड करें number of students who have failed in at least one subject, so at least one subject से मतलब है number of students failed in at least one subject, मतलब M, P and C, इन सब का अगर हम निकाल देते हैं यूनिवर्सल सेट तो ये सारे फील्ड के ही हैं, सबको हम
ऐड कर देंगे. सो वी हैव इट एज, पहले हम इसका वेन डायग्राम बना देते हैं. वेन डायग्राम से आंसर निकल आएगा हमारा. सो यहाँ पर हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री. दिस इज फॉर केमिस्ट्री, दिस इज फॉर मैथ्स, दिस इज फॉर फिजिक्स एंड दिस इज फॉर केमिस्ट्री. सो इन सब में जो फेल है दैट इज 25. अब हम देखेंगे मैथ और फिजिक्स में. मैथ और फिजिक्स में 30 फेल्ड हैं. सो 25 तो ये ऑलरेडी हो गए, बचे कितने? 5. फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 32 फेल हैं, 25 ऑलरेडी हैं, बचे कितने? 7. मैथ और केमिस्ट्री में हमारे पास 35 स्टूडेंट फेल हैं, 25 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे? 10. अब हम देखेंगे जो कि मैथ में फेल्ड हैं दैट इज 45. मतलब 5 और 25 30, 30 प्लस 10 40 और 5 जो फेल हैं सिर्फ मैथ्स में दैट इज 5. सिमिलरली अगर फिजिक्स में फेल की बात करें तो 50 है. 5 प्लस 25 30 प्लस 7 इज 37. 37 50 में से माइनस किया तो हमारे पास आ गए 13. नेक्स्ट इन केमिस्ट्री 48 स्टूडेंट जो कि फेल्ड हैं. सो ये हो गया 35 प्लस 7 42. इसमें से माइनस किया तो वी गेट 6 स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री. सो इन ऑल वी हैव दिस कंप्लीट चार्ट फॉर कंप्लीट वेन डायग्राम फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अगर हम यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स देख रहे हैं 150. सो इन सबको मिलाने के बाद जैसे कि हमने देखा 5 मैथ्स में, 5 दोनों को मिला के प्लस 25 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 13 वी हैव 71 इन ऑल. ये हमारे पास 71 है. टोटल हमारे पास 150 स्टूडेंट्स थे. 70 में से माइनस कर देंगे वी गेट हियर 79 जो कि इन सब से पास है. मतलब ये सारे फेल के लिए बनाया है, तो ये जो 79 है दिस इज फॉर पास. क्वेश्चन नंबर 12. अ फर्म हैज 40 वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री premises, 30 working in its office and 20 working in both the places. How many workers are there in the firm? How many are working in the factory and in office? तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. सो जैसे कि हम एज्यूम कर रहे थे कि फर्म में 40 वर्कर्स हैं, तो टोटल इन फर्म एफ हम मान रहे हैं दैट इज 40 एंड वर्किंग इन ऑफिस मतलब NO है दैट इज 30 एंड 20 वर्किंग इन बोथ द प्लेसेस. तो NF एंड ऑफिस, फैक्ट्री एंड ऑफिस दोनों मिलाकर अगर हम देखें सो वी हैव 20. सो फर्स्ट आपको निकालना है हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द फर्म. सो नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फर्म, टोटल number of workers in firm that is NF union O. So that is going to be 40 plus 30 minus 20 which is going to be 50. अब हमको निकालना है हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्री. सो फर्स्ट पार्ट फॉर फैक्ट्री, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री आर फैक्ट्री एंड नॉट इन ऑफिस. So NF minus NF intersection O. NF is 40 minus 20 is equal to 20. Second is number of workers working in office and not in firm. So NO minus NF intersection O. So NO is 30 minus 20 that is equal to 10. सो हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.